FATF اجلاس کا آخری دن پر پاکستان کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد آج گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق قوی امکانات ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ FATF سربراہ کی طرف سے پریس کانفرنس میں فیصلے کا اعلان متوقع ہے۔ وقاص عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ وقاص عظیم، آج اجلاس کا آخری روز ہے، امکانات ہیں کہ گرے لسٹ سے نکل جائے گا پاکستان؟ جی، FATF کا جو اجلاس ہے وہ برلن میں گزشتہ 3 روز سے جاری رہا ہے، جس میں 15 اور 16 جون کو پاکستان کی جو رپورٹس ہیں اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ پاکستان کو تقریباً 34 نکاتی ایکشن پلان دیا گیا تھا، جس میں سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے تقریباً تمام نکات کے اوپر جزوی یا پھر مکمل طور پر عمل درآمد کر لیا ہے۔ اور اس سے پہلے جب اگست 2018 میں پاکستان کو ایک FATF کا ایکشن پلان دیا گیا تھا تو اس میں 26 نکات تھے، لیکن اس میں سے بھی پاکستان نے کافی نکات کے اوپر عمل درآمد کر لیا تھا، لیکن بعد ازاں پاکستان کو 7 اضافی نکات کا ایکشن پلان دیا گیا تھا۔ اس طرح 34 نکاتی جو ایکشن پلان تھا اس میں سے 30 سے زائد ایسے نکات ہیں جس کے اوپر پاکستان نے مکمل طور پر عمل درآمد کر لیا تھا، لیکن ایک نکتہ ایسا تھا جس کے اوپر پاکستان نے جزوی طور پر عمل درآمد کرنا تھا۔ اب جو FATF کا اجلاس ہوا ہے، وزیر مملکت برائے خارجہ جو ہے ہنا ربانی خان، انہوں نے پاکستانی وفد کی قیادت کی ہے۔ برلن میں یہ اجلاس جاری رہا ہے اور پاکستان کی رپورٹس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آج شام 7:30 بجے برلن میں جو FATF کے سربراہ ہیں وہ پاکستان کی رپورٹ سے متعلق آج فیصلہ کریں گے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی جو اناؤنسمنٹ ہے، جو اعلان ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اکتوبر تک پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا، کیونکہ اگر آج اعلان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک FATF کا وفد جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گا اور آن سائٹ یہاں پر وزٹ کرے گا، اور تمام جو نکات ہیں ان کا یہاں پر پاکستان میں آنے کے بعد جو عمل درآمد کیا گیا ہے اس کا جائزہ لے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی خان نے بھی اپنے ٹویٹ میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز پاکستانی میڈیا کے لیے ایک بریفنگ کا اہتمام کر رکھا ہے، جس میں پاکستان سے متعلق جو بھی آج فیصلہ ہوتا ہے گرے لسٹ میں رکھنے یا پھر اس کو گرے لسٹ سے نکالنے سے متعلق ایک تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی جو رپورٹس ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں، اور 34 نکات میں سے بہت سارے نکات پر پاکستان نے مکمل طور پر عمل درآمد کر لیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وقاص عظیم۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی خر نے FATF گرے لسٹ پر قیاس آرائیوں سے منع کر دیا۔ اپنے ٹویٹ میں ہنا ربانی خر نے کہا کہ FATF کے برلن میں اجلاس جاری ہے۔ FATF آج رات اجلاس کے اختتام کے بعد بیان جاری کرے گا۔ نتائج یا قیاس آرائی پر مبنی رپورٹنگ سے گریز کیا جانا چاہیے، یہ ٹویٹ کیا گیا ہے وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی خر کی جانب سے، جنہوں نے FATF گرے لسٹ پر قیاس آرائیوں سے منع کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ہنا ربانی نے کہا ہے کہ FATF کے برلن میں اجلاس جاری ہیں۔ FATF آج رات اجلاس کے اختتام کے بعد بیان جاری کرے گا۔ نتائج یا قیاس آرائی پر مبنی رپورٹنگ سے گریز کیا جانا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق آج شام جو ہے 7:30 بجے اس کا اعلان کیا جائے گا، اور یہ امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی خر نے FATF گرے لسٹ پر قیاس آرائیوں سے منع کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ہنا ربانی نے کہا ہے کہ FATF کے برلن میں اجلاس جاری ہیں۔ FATF آج رات اجلاس کے اختتام کے بعد اپنا بیان جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نتائج یا قیاس آرائی پر مبنی رپورٹنگ سے گریز کیا جانا چاہیے۔ پاکستان کو آج گرے لسٹ سے نکالے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آج 7:30 بجے بیان جاری کیا جائے گا۔ آج اجلاس کا آخری روز ہے اور 7:30 بجے جو ہے اس کا اعلان کیا جائے گا۔ بڑھتا تجارتی خسارہ اور بیرونی قرض کی ادائیگی روپے کو لے ڈوبی ہے۔ انٹر بینک پر ڈالر 83 پیسے مہنگا ہو گیا اور ڈالر 208 روپے 50 پیسے کا ہو گیا ہے۔ نئی حکومت آنے کے بعد اب تک ڈالر 26 روپے 49 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ اشرف خان، بتائیے گا ماہرین کا کیا بتانا ہے، کس طرح سے اقدامات کیے جائیں کہ ڈالر کی اڑان کو روکا جا سکے؟
जी, देखा जाए पाकिस्तान का तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ रहा है और उसका जो कंसर्न शो किया जा रहा है और हुकूमत पाकिस्तान को भी बताया जा रहा है कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें देखा जाए 11 माह में पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है 43,40 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता माली साल से 58% का इजाफा हुआ है। साथ ही बैरूनी कर्जों की अदायगी हो रही है। उससे स्टेट बैंक के ज़खायर जो हैं नवंबर 2019 की कम सतह से भी नीचे आ गए हैं, 9 अरब डॉलर से भी कम रह गए हैं। वो कंसर्न देखा जा रहा है क्योंकि जो तकरीबन 1.5 माह से भी कम का दरामदी बिल के बराबर ज़खायर रह गए हैं स्टेट बैंक के साथ, जिसके बाद जो रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 83 पैसे मजीद महंगा हो गया, 208 रुपए 50 पैसे की नई बुलंदतरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। और नई हुकूमत जो 12 अप्रैल को आई थी उससे लेके अब तक इंटरबैंक में डॉलर 26 रुपए 49 पैसे महंगा हो गया। 12 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 1 पैसे पे था। और माहिरीन कंसर्न शो करें जैसे जैसे डॉलर महंगा हो रहा है तो दरामदी बिल जो है उसके लागत बढ़ रही है और उस लागत बढ़ने के जो महंगाई पर असर होगा और पाकिस्तान में जो महंगाई की जो डबल डिजिट है उसमें तेजी से मजीद इजाफा हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको बताएं, मुदस्सिर नारो और दीगर मिसिंग पर्सनस की अदम बाजियाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अता मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि रियासत जबरी गुमशुदगियों में मुलव्विस है। पुलिस मावराए अदालत कत्ल करती रही, एजेंसियों पर लोगों को उठाने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब भी रोज़ाना लोग उठाए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं, एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा इस समाअत का मजीद अहवाल। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मिनल्लाह ने ये समाअत की है और गुज़िश्ता समाअत का जो ऑर्डर जारी किया गया था उसमें अदालत ने कुछ अहकामात जारी किए थे, जिससे मुतालिक आज डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा गया। अदालत ने सवाल किया कि अदालत ने वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया था कि परवेज मुशर्रफ से उसके बाद के जो वज़राए आज़म हैं उन सबको आपने नोटिस जारी करने हैं और उन्हें बयान हल्फी अदालत में जमा कराने का कहना है। तो क्या वो नोटिस जारी किए गए? वो नोटिस और बयान हल्फी कहाँ हैं? जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर हैं और आइंदा समाअत पर वो अदालत में पेश होकर वो खुद आगाह करेंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि आप उस ऑर्डर को पढ़ें, उसमें मौजूदा और साबिक वज़राए दाखिला को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया था। अगर जो मिसिंग पर्सन हैं उनको बाजियाब नहीं कराया जाता या उनको ट्रेस करने के लिए कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए जाते तो अदालत ने ये इस्तफसार किया कि वज़राए दाखिला किधर हैं। उस पर भी उनकी जानिब से ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल मिसिंग पर्सन से मुतालिक कमीशन तश्कील दिया है और अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या उस कमीशन की कोई मीटिंग हुई है। उसको तो रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग करनी चाहिए थी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जब एक बार फिर से वक्त देने की इत्तला की तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप इस बात को छोड़ दें, आपने इस अदालत के हुक्म के साथ जो किया है उसके बाद तो इस पर बात करना नहीं बनती। अदालत ने एक बार फिर से मौका दिया है कि रिमार्क्स दिए हैं कि जो कमेटी तश्कील दी गई है वो काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इक़दाम तो उठाया गया है। एक बार फिर मौका दे रहे हैं कि आइंदा समाअत तक वफाकी हुकूमत अदालत के गुज़िश्ता ऑर्डर पर अमल दरामद करे और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो अदालत के सामने दलाइल दें और अटॉर्नी जनरल मौजूदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के बयान हल्फी भी इस अदालत के सामने पेश करें। इन्हीं अहकामात के साथ अदालत ने केस 4 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम। और अब मौसम की बात करेंगे। वस्ती पंजाब में बादल बरस पड़े। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, लाला मूसा, दीना, फैसलाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश और तेज़ हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। पुंछ डिवीज़न के सदर मकाम रावलाकोट और गिरदोनवाह में भी तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे हैं। वस्ती पंजाब में बादल बरस पड़े जिसके बायस मौसम खुशगवार हुआ है, गर्मी का जोर टूट गया है। रावलपिंडी, लाला मूसा, दीना, फैसलाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार और तेज़ बारिश हुई।
लाहौर में गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद जहां शहर का मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं पर मुतअद्दिद इलाके और अहम शाहराहें ज़ेरे आब आ गई हैं। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, ये जान लेते हैं हसनैन ओलग से। जी हसनैन। आज रात भर से लेकर अब तक अब्रे करम ऐसा खुलकर बरसा है कि अब्रे रहमत अब शहरियों के लिए जहमत बनती हुई दिखाई दे रही है। जो मूसलाधार बारिश हुई है उसके बाद जो मुतअद्दिद नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं और जो अहम शाहराएँ हैं उनके ऊपर जो पानी है वो बड़ी तादाद में जमा हुआ है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कच्चा जेर रोड पर और मेरे अकब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर कई फुट पानी जमा है। आमदोरफ्त जो है बुरी तरह से मुतासिर हो रही है दोनों अतराफ में अगर देखा जा सके, और जहाँ तक कैमरा की आँख हमारे नाजरीन को दिखा सके कि यहाँ पर जिस कदर पानी जमा हुआ है, रास्ते में जो गाड़ियाँ हैं ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल्स हैं वो बंद हो रही हैं और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो भी मुतअद्दिद जो हैं बंद हुई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आने जाने में आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। निकासी आप मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा है। कच्चा जेर रोड के ऊपर हम मौजूद हैं। बारिश का सिलसिला भी जारी है और जो लोग अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवां दवा हैं, यानी कि दफातर जाना है या अपने कहीं मनाजिल के ऊपर जाना है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर ऐसे मौसम में जो गाड़ियां हैं, ख़ास तौर पर बाइक्स और पुरानी गाड़ियां जो हैं उनके बंद होने के जो वाक़यात हैं वो भी रूनुमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसनैन। लाहौर में प्री मानसून की पहली बारिश ने इंतजामिया की कलई खोल दी। मेन रोड, सोडेवाल कॉलोनी और मुल्हिका सड़कों पर पानी ही पानी है। पानी के बायस राहगीरों, दुकानदारों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, राव दिलशाद हुसैन से जानते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, मानसून की पहली बारिश है और पहली बारिश में ही जो इंतजामिया की तैयारियां थी जो गुज़श्ता माह से जारी थी, जिसके हवाले से मुतअद्दिद इजलास जो है वो चेयर किए गए और मुख्तलिफ फैसले भी किए गए। चोकिंग पॉइंट्स के हवाले से जो अमला था वो डिप्यूट करने का फैसला किया गया, लेकिन सूरत हाल बिल्कुल इसके बरअक्स है। मैं मौजूद हूँ यहाँ सोडीवाल के इलाके में, जहाँ के जो कि ये मरकज़ी शाहरा है सोडीवाल की, और मेरे बाएँ जानिब जो है वो हैदराबाद का इलाका है, दाएँ जानिब सोडीवाल का इलाका है, जबकि मेरे अकब में जो है वो राना अब्दुल रहीम हॉस्पिटल है, जो इस वक्त पूरी तरह से जहाँ पर जल थल के मनाजिर देखे जा सकते हैं। आपको बताएं कि रात की जो बारिश थी वो वक्फे से जारी तो है, लेकिन निकासी आपका जो अमल है वो माजी के मुकाबले में थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि माजी के मुकाबले में अगर बात की जाए तो माजी में अगर इस तरह की बारिश होती थी तो यहाँ पर पानी इससे ज़्यादा जो है वो जमा होता था, लेकिन आज भी तकरीबन 2-2 फीट जो पानी है वो यहाँ पर मौजूद है, और जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल लेवल नीचे ज़रूर आया है, लेकिन बतदरीज नीचे आता जाएगा अगर बारिश थम जाती है। फ़िलहाल चूँकि बारिश का भी वक्फे से सिलसिला जारी है और ये थमेगा नहीं, इससे जो मुल्हिका इलाके हैं, तारिक कॉलोनी और दीगर जो एरियाज़ हैं, उनकी वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है, क्योंकि सीवरेज के हवाले से। आपका आगे बढ़े और आपको बताएं कि एनए 240 ज़िमनी इलेक्शन में घुमसान का रन। MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। TLP के उम्मीदवार 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। महाजिर कौमी मूवमेंट के मोहम्मद रफ़ीउद्दीन 8,383 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के नासिर रहीम को 5,248 वोट मिले। PSP के शबीर कायम खानी ने 4,797 वोट हासिल किए हैं। और आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान के मोहम्मद अबू बकर कामयाब हुए हैं, जिन्होंने 10,683 वोट लिए हैं। इनके बाद TLP के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 10,618 वोट हासिल किए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट के मोहम्मद रफ़ीउद्दीन 8,383 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और आपको बताएं कि मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7,577 मेगावाट है। बिजली का पैदावारी शॉर्टफॉल 5,777 मेगावाट है। बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टफॉल 2,000 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीज़न के मुताबिक देही और शहरी इलाकों में लोड शेडिंग शेड्यूल में फ़र्क से 2,000 मेगावाट बिजली तकसीम नहीं हो पा रही। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज़्यादा है।
वफाकी वज़ीर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चौधरी सालिक हुसैन तुर्की के दौरे पर है। वफाकी वज़ीर और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने इस्तांबुल में D8 के सेक्रेटरी जनरल सियाका अब्दुल कादिर से मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाकिस्तान और D8 ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। D8 के तरजीही तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद के लिए भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगा। टेक्सटाइल सेक्टर ने बरामदात के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मई 2021 के मुकाबले मई 2022 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 56% इजाफे से 1 अरब 64 करोड़ डॉलर रही है। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। जी अशरफ, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर की रिपोर्ट सामने है, जिसे मई 21 के मुकाबले मई 22 में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 56% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और मई 2022 में टेक्सटाइल सेक्टर ने सिर्फ 1 अरब 64 करोड़ डॉलर की बरामदात की है, जो कि नया रिकॉर्ड बना है। और देखा जाए मई 2021 में टेक्सटाइल की बरामदात 1 अरब 5 करोड़ 20 लाख डॉलर थी। रवा माली साल 11 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 28% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 11 माह में पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 17 अरब 62 करोड़ डॉलर की नई रिकॉर्ड सतह कायम कर दिए। गुज़िश्ता माली साल 11 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 13 अरब 64 करोड़ डॉलर थी। और यहाँ पे जो टेक्सटाइल सेक्टर से जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि साबका हुकूमत ने DATL के मद में जो अरबों रुपए दिए हैं, उसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफा हुआ है। और मौजूदा हुकूमत ने आकर जो DATL और टेक्सटाइल पॉलिसी पर जो अमल दरामद रोक दिया है, जिससे आगे चल के बरामदात में मुश्किलात हो सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में महंगाई का सुनामी बेकाबू है। आटा मजीद महंगा हो गया। गंदम, बिजली, पेट्रोल महंगा होने पर चक्की मालिकान ने आटा महंगा कर दिया। चक्की आटा 3 रुपये किलो महंगा करके 98 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया। मई में चक्की आटा 5 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है। आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने नई कीमतों का सर्कुलर जारी किया। गला मंडियों में गंदम 2950 रुपये फ़ी मन है। शहजाद खान अब्दाली से तफसीलात जानते हैं। जी शहजाद, बताइएगा। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक सामने आने का सिलसिला जारी है। आज शहर की ओपन मार्केट में चक्की आटा मालकान ने आटे की कीमतों में 3 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा कर दिया है। 3 रुपये इजाफे के बाद अब शहर की चक्कियों पर आटा 95 रुपये से बढ़कर 98 रुपये फ़ी किलोग्राम में शहरियों को मिल सकेगा, जबकि गुज़श्ता माह यानी मई के दौरान भी आटे की कीमतों में 5 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा गया था। तो मजमूई तौर पर 1.5 महीने के दौरान आटे की कीमत में 8 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है और अब शहरियों को चक्कियों पर आटा 98 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से मिल सकेगा। और इस हवाले से आटा चक्की मालकान की जानिब से शहर की तमाम चक्कियों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है और उन्हें ये हिदायत की गई है कि नई कीमत के मुताबिक चक्की आटे की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान का ये कहना है कि पंजाब भर की गला मंडियों में जो गंदम है, इसकी नई कीमत 2950 रुपये सामने आई है। उनका ये कहना है कि आटे की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह जो है वो गंदम की कीमतों में इजाफा भी है और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, जिसके बायस आटे की कीमतों में इजाफा करना नागुज़ीर हो चुका है। इस हवाले से आटा चक्की मालकान का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो गंदम की फ़ी मन कीमत है वो 2200 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई है, लेकिन पंजाब भर में कहीं भी 2200 रुपये फ़ी मन पर गंदम जो है वो दस्तयाब ही नहीं है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत इक़दाम करे और सरकारी रेट पर गंदम की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि सस्ता आटा शहरियों को मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बादलों से चंद बूंदें गिरते ही बिजली ने मुंह मोड़ लिया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग ने बूंदाबांदी का मजा किरकिरा कर दिया। कुछ इलाकों में गैर एलानिया बंदिश भी की जा रही है कि इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया और 15 घंटों की लोड शेडिंग की तरतीब की है। सूरत हाल क्या है, हबीब खान से जानते हैं। जी हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए शहर में लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है उसमें किसी किस्म की कोई बेहतरी इस वक्त तक नहीं आ सकी है कि इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये अपडेट किया गया था कि सिस्टम में कुछ जो है वो बेहतरी आई है और 2750 मेगावाट से बिजली बढ़कर जो है वो इस वक्त उसकी तरसील 2900 मेगावाट तक जो है वो शहर में की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद शहर में इस वक्त बिजली बंदिश के दौरानिए के हवाले से बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है और जो बिजली से लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके थे उन इलाकों में भी शेड्यूल के तहत
लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। उसके साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो कुछ इलाकों में देखी जा रही है और शहरियों की जानिब से ये शिकायत भी मौसूल हो रही हैं, जिसपे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हों या के लेटर का कंप्लेंट सेंटर हो, वहाँ पर शहरियों की जानिब से ये शिकायत हैं कि इस वक्त जो है वो सख्त जब शहर में गर्मी का बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी अफसर ने मिसाल कायम कर दी। 19 ग्रेड के अफसर ने सरकारी पेट्रोल लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर जाहिद ने 110 लीटर पेट्रोल लेने से इनकार कर दिया है। सरकारी अफसर की जानिब से एक मिसाल कायम की गई है। 19 ग्रेड के ऑफिसर ने सरकारी पेट्रोल लेने से इनकार किया है। डॉक्टर जाहिद ने 110 लीटर पेट्रोल लेने से इनकार करके एक मिसाल कायम की है। 19 ग्रेड के ये ऑफिसर हैं जिनका नाम डॉक्टर जाहिद है। उन्होंने 110 लीटर सरकारी पेट्रोल लेने से इनकार किया है।